Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's session. And today we are going to talk about factors influencing wage and salary structure. Along with that, we'll be talking about salary survey and universal compensable factors. And we would also be looking at the procedures with which we can develop the grades and scales. How can we calculate the minimum salary, maximum salary, and the average salary points in a given grade or given scale. Along with that, we would also be talking about green circle employees and red circle employees. And obviously the factors which are going to influence the wage and salary structure. So our first discussion is about factors influencing wage and salary structure. And we can look in the slide that there are two aspects in which those factors can be categorized. One are the internal factors and others are the external factors. When we use the expression internal factors, we are talking about inside the organization. And when we say external factors, that means environmental factors which are beyond the boundaries of the organization. So all the components, all the stakeholders, all the constituents of the external environment are in a continuous effort to influence the organization in one way or the other. And we will be looking at some of the aspects that how these factors are going to affect the compensation system within an organization. So when we talk about internal factors, first of all, we're going to talk about internal factors. We have number one, compensation policy of organization. And in our last session, we discussed different policy aspects, the frameworks which are affecting the policy of an organization. So in that particular policy, whatever approvals you have received from the top management based upon the package plans that you have designed, which are also based upon all the theories and concepts which we discussed in the last session. So आप अपनी compensation policy में वाज़ा करते हो कि आपकी organization के अंदर किन scales और किन grades के लिए financial और non-financial compensations वो किस तरह की होंगी, आपने benefits लोगों को क्या provide करने हैं, incentives क्या provide करने हैं. तो पहली चीज तो ये हमारे जहन में आ गई कि हमने एक पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा जो कि आपका पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी होगा कि आप उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन करोगे तमाम लोगों के लिए पैकेज प्लान्स, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फ्लेक्सिबल पैकेज प्लान्स बना सको, so that would be very beneficial for the employees. Policy document और उसके approvals receive हो जाने के बाद, the next thing which is affecting the compensation system is worth of job. और worth of job को calculate करने के लिए हम एक job evaluation criteria पूरा discuss करेंगे, जिस जॉब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से इस बात का अंदाजा हो पाता है कि एक हायरार्की में किस जॉब को किस लेवल पर वो होना चाहिए. सो याद रखिएगा, एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है कि डेजिग्नेशन टाइटल्स टेक्निकली स्पीकिंग आर जस्ट फ्लैशी वर्ड्स. उनकी कोई ग्राउंड और बेस नहीं होती, वो सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं लोगों को पुकारने के लिए.
असल चीज जो एक जॉब में होती है वो उसका टाइटल नहीं बल्कि उसकी वर्थ होती है। आप किसी भी टाइटल को एलोकेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन एक बड़े से टाइटल के लग जाने से यह जरूरी हरगिज नहीं होगा कि उस जॉब की वर्थ भी इंक्रीज कर गई है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अरसा कबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ वाबस्ता एक पूरी सेल्स फोर्स टीम होती है जिनको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं या सेल्स रैप्स कहते हैं। आपने अक्सर औकात डिफरेंट डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के बाहर सेल्स रैप्स को देखा होगा जो कि डिफरेंट मेडिसिन को बेचने के लिए उन डॉक्टर से राब्ता करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की एग्जांपल कोट कर रहा हूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इस बात को महसूस किया जाना शुरू हुआ कि वो सेल्स रैप्स जो हैं दे आर डीमोटिवेटेड और उनका जो सोशल स्टेटस है वो मुतासिर हो रहा है। सम स्मार्ट एचआर मैनेजर उसने उन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कहने की बजाय उनका टाइटल चेंज कर दिया एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग दोज पीपल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, और फॉर दैट मैटर यू कैन कॉल देम सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, अब इस टाइटल की शिफ्ट से आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, एक सेल्स रैप को आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का नाम दे दो या सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम दे दो, तो इस टाइटल के चेंज कर जाने से उसकी इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन तो होगी, लेकिन एक्सट्रिंसिक आपने कंपनसेशन में कोई इजाफा नहीं किया। नंबर 2, उसकी जो वर्थ ऑफ जॉब है टेक्निकली स्पीकिंग उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं आया। द वर्थ एंड द जॉब इवैल्यूएशन वुड रिमेन द सेम, यू हैव ओनली शिफ्टेड द और चेंज द टाइटल। ठीक है, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन होता है, ठीक है, स्लोगन के बदल जाने से ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह टाइटल्स आर जस्ट फ्लैशी एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस कि जी कौन किस पोजीशन पर काम वो कर रहा है। लेकिन याद रखें कि जब हम एक हायरार्की बनाते हैं, हम एक ऑर्गेनोग्राम डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें द रियल थिंग काउंटेड, जिसकी बेसिस पर आप एक जॉब को दूसरी जॉब पर फोकियत दोगे, तरजीह दोगे, उसको अपर पोजीशन पे रखोगे, दूसरे को लोअर पोजीशन पे रखोगे, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज वो टाइटल नहीं होता, वो जॉब वर्थ होती है। So today we'll be talking about job worth and we'll be looking that compensation system जब हम डेवलप कर रहे होंगे तो उसमें job worth को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। And again, this would be the part of your project, जिसमें आप selected organizations के अंदर जो jobs होंगी उनकी job evaluation, job worth वो कैलकुलेट करोगे। जहां तक ताल्लुक जॉब डिस्क्रिप्शन का है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपको टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताती है। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब वर्थ वो काउंट नहीं हो रही होती। जॉब वर्थ को काउंट करने के लिए हमारे पास एक टोटली डिफरेंट टेक्निक आएगी जिसको हम नाम देंगे यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स का। ठीक है, सो यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स, दैट इज द मेथड जिससे कि एक जॉब वर्थ और जॉब इवैल्यूएशन को कैलकुलेट वो किया जाता है। जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें महज सिर्फ ये दर्ज किया जाएगा कि आपने टास्क एंड ड्यूटीज परफॉर्म क्या करने हैं। तो टास्क एंड ड्यूटीज की वर्थ क्या है, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन जिसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद तीसरा इंटरनल फैक्टर जो कि कंपनसेशन सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, दैट कैन बी एम्प्लॉइज रिलेटिव वर्थ। ठीक है, तो अब जिस तरह आप जॉब एनालिसिस में दो एस्पेक्ट्स की बात करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज टॉकिंग अबाउट TDRs एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इज टॉकिंग अबाउट KSAOs। बिल्कुल उसी तरह
जब हम जॉब वर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक एस्पेक्ट होगा जिसमें कि हम एक जॉब की वर्थ को कैलकुलेट करेंगे और दूसरा एस्पेक्ट होगा जिसमें कि हम एम्प्लॉइज की रिलेटिव वर्थ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉइज की रिलेटिव वर्थ जो है, इसके एक्सप्रेशन के लिए हमने पहले एक टर्म यूज की थी क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि एक एम्प्लॉय ओवर क्वालिफाइड हो सकता है, अंडर क्वालिफाइड हो सकता है। तो अब सपोजिटली कि एक एम्प्लॉय जिसको हायर किया गया, उसके नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर बेटर देन, मोर देन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। तो अब उस केस में जॉब की वर्थ तो शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन उस एम्प्लॉय की वर्थ शायद ज्यादा है। अब एम्प्लॉय की वर्थ जो है वो सिर्फ उसके KSAOs पर बेस नहीं करती। एम्प्लॉय की वर्थ सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। एम्प्लॉय की वर्थ क्रिटिकलिटी ऑफ द जॉब पे भी डिपेंड करती है। एम्प्लॉय की वर्थ सेंसिटिविटी ऑफ द जॉब पर भी डिपेंड करती है। सो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हम गो थ्रू करेंगे जिससे कि जॉब की वर्थ को कैलकुलेट करना और एम्प्लॉय की वर्थ को कैलकुलेट करना, इन दोनों चीजों को हम मद्देनजर रख सकें। एक शख्स जिसने के अपनी जॉब की टिपिकल रिक्वायरमेंट से ज्यादा कुछ सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए हैं, उसके पास डिग्रीज हैं, उसके पास कपल ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके पास इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हैं, तब इंडस्ट्रियल लिंकेजेस का होना एक एम्प्लॉय की सेल्फ वर्थ को बढ़ा रहा है। उसकी सेल्फ वर्थ के बढ़ने से जॉब की वर्थ शायद इंक्रीज नहीं करेगी। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको कि हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, एंड दैट इज एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे। कि कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना, ऑर्गेनाइजेशन जिस पे भी आप अपना वर्किंग कर रहे हो, जिसके लिए भी आप ये सारा सिस्टम डेवलप कर रहे हो, वो उस जॉब के लिए पे कितना कर सकते हैं, उनके रेवेन्यूज कितने हैं, उनके प्रॉफिट्स कितने हैं। ये तमाम चीजें मिलजुल कर इफेक्ट कर रही होती हैं हमारे पूरे कंपनसेशन सिस्टम पैकेज प्लान्स को। उसमें फिर ये डिटरमिन किया जाता है कि हमने लोगों की इंट्रिंसिक नीड्स के लिए, एक्सट्रिंसिक नीड्स के लिए किस तरह से अपने सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, हमने फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या देने हैं, हमने नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या देने हैं। तो ये तमाम चीजें जनरली स्पीकिंग इन 4 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड वो कर रही होंगी। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स और हो सकते हैं, लेकिन जस्ट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ये 4 मेजर जो पॉइंट्स थे वो आपसे डिस्कस किए गए। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी बेशुमार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं जो प्रिवेल कर रही होती हैं। वो तमाम फैक्टर्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अनसर्टेनिटीज, दे आर ऑलवेज अफेक्टिंग द कंपनसेशन सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन जस्ट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग के किस तरह के पॉइंट्स हम पिक करेंगे, यहां पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स वो मौजूद हैं। सबसे पहला फैक्टर देखिए, कंडीशंस ऑफ द लेबर मार्केट। ठीक है, और ऑब्वियसली जब हम कंडीशंस ऑफ द लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन, उससे रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल एम्प्लॉइज के नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज, उससे रिलेटेड मार्केट की कंसंट्रेशन कि कितने वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑपरेशनल हैं, वहां पर ट्रेंड कैसा है। बाजुकात MNCs के आने से भी मार्केट सिचुएशन चेंज कर जाती है। लेबर मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स जो कि प्रिवेल कर रहे होंगे, उन सब को मद्देनजर रखा जाता है जब आप इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन सिस्टम डिजाइन वो कर रहे हो। अब एक बात याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल मार्केट की सिचुएशन है, एक्सटर्नल मार्केट की सिचुएशन वो ऑर्गेनाइजेशन के जो इन हाउस इफेक्ट्स हैं उनको असरअंदाज तो उन पर हो रही होगी, लेकिन वो उनको रिप्लेस नहीं कर रही, बिकॉज मार्केट सिचुएशन इज आउटसाइड। ठीक है, और यहां पर जब हम डिफरेंस इसमें क्रिएट करना चाहें कि मार्केट सिचुएशन और इंटरनल सिचुएशन, एम्प्लॉइज वर्थ के अंदर फर्क क्या है, तो उसके हवाले से याद रखिएगा कि मार्केट सिचुएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट्स। ठीक है, जिन्होंने अभी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। लेकिन जब हम एम्प्लॉय रिलेटिव वर्थ की बात कर रहे थे तो उस वक्त वी वर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु हैव ऑलरेडी जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दो मुख्तलिफ बातें होंगी।
because employees relative worth is employees inside, जबकि conditions of labor market की जब हम बात कर रहे हैं तो these are the candidates outside. ठीक है, तो इन दो चीजों को वो फर्क रखिएगा. उसके बाद सेकेंड पॉइंट इन एक्सटर्नल फैक्टर वी हैव इज एरिया वेज रेट्स. अब ये भी बात देखी जाएगी कि किस इलाके में आप काम कर रहे हो और उस इलाके के अंदर इंडस्ट्री कैसी है, कितने यूनिट्स वहां पर ऑपरेशनल हैं और वहां पर एक एवरेज वेज रेट जो है वो क्या चल रहा है. ये बात जरूरी नहीं है कि जो वेज रेट कराची का होगा वही वेज रेट इस्लामाबाद में भी होगा. राइट, सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि वेजेस, सैलरीज ये डिफरेंट हो जाती हैं बेस्ड अपॉन कि किन एरियाज में किन कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव के साथ आप काम कर रहे हो. ओके, सो कंपनसेशन सिस्टम जब हम डेवलप कर रहे होंगे तो हमें एरिया वेज रेट को भी देखना होगा कि जियोग्राफिकली स्पीकिंग वहां की इंडस्ट्रियल जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है, कितने यूनिट्स वहां पर ऑपरेशनल हैं और वहां पर एक एवरेज जो वेज रेट है वो क्या रिवाज पा चुका है. और उस एवरेज वेज रेट को ही हम थ्रू सैलरी सर्वे या वेज सर्वे वो कंडक्ट करने की कोशिश वो करेंगे. तो जब हमारे पास एक एवरेज वेज रेट ऑफ सैलरी या वेजेस आ जाएंगी तो उसके बाद फिर हम उस एवरेज के ऊपर बेस्ड अपने ग्रेड्स और स्केल्स बनाएंगे और इस बात को भी डिटरमिन करेंगे कि एक जॉब के अंदर मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर ग्रेड के अंदर मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेज कितनी होनी चाहिए और ऑब्वियसली एवरेज वेज जो है वो कितनी होगी. सो इन तमाम बातों का ताल्लुक ऑब्वियसली इस बात से है कि जिस इलाके में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर लोगों की एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जॉब के लिए तनख्वाहें या उनकी जो दिहाड़ी है वो कितनी है. इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम काउंट करते हैं एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में, विच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस एक बकायदा अलाउंस भी अरेंज करती हैं जिसको हम कहते हैं कोला. द कोला इज बेसिकली COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस से रिलेटेड बाज औकात आपने एक्सप्रेशन सुना होगा, जैसे बाज जॉब्स के अंदर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि बिग सिटी अलाउंस होता है. अब बिग सिटी अलाउंस का मतलब क्या होगा कि बड़े शहरों में द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज रिलेटिवली मोर एज कंपेयर टू द स्मॉलर सिटीज, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर रिहाइश भी महंगी होगी, वहां पर ट्रैवलिंग भी ज्यादा होगी और महंगी होगी, लिहाजा जितनी भी जरूरियातें जिंदगी हैं बड़े शहरों में ज्यादा अवेलेबल होने के साथ साथ ज्यादा वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वो होती है एज कंपेयर टू अगर एक छोटे इलाके में एक एम्प्लॉय की पोस्टिंग हो तो छोटे इलाके में आपकी रिलेटिवली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, रिहाइश की, ट्रैवलिंग की, खाने पीने की, माहाना अखराजात की, वो रिलेटिवली लेस होगी. ओके, सो इसी बेसिस पर जैसे आपको मैंने बताया कि एक पूरा टर्म हमारे पास अवेलेबल है नोन एज कोला, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो कि कंपनसेशन सिस्टम्स के अंदर एम्प्लॉइज को दिया जाता है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द प्लेसेस इन विच दे आर ऑपरेशनल. सो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाजुकात एक जैसी जॉब के लिए ही मुमकिन है कि किसी एक शहर में उनको विच इज अ बिगर सिटी, विच इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पर उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिल रहा हो और उसी डेजिग्नेशन के साथ अगर आप किसी छोटे सिटी में ऑपरेशनल हो तो वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आपको ना मिल रहा हो. सो अगेन वी हैव टू बियर इन माइंड कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि कंपनसेशन सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट वो करती हैं. इसी तरह डियर कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारे पास से कॉन्टेक्स्ट आ जाता है. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग, नो डाउट वी आर टॉकिंग अबाउट CBAs, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स, ठीक है, लेकिन हम CBA को नो डाउट CBAs जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इनको हम आउटसाइडर काउंट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आउटसाइड लीगल कॉन्टेक्स्ट में वो होती है. So when they are actually influencing the organization as a stakeholder, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स जो हैं they are basically the people जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेगोशिएशंस करते हैं for the welfare and the betterment of the workers. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के बारे में याद रखिएगा कि सपोजिटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेबर यूनियंस हैं, तो अब तमाम लेबर यूनियंस बाज औकात मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं करती. वो तमाम लेबर यूनियंस, अगर एक से ज्यादा लेबर यूनियंस हो तो वो तमाम लेबर यूनियंस
आपस में वोटिंग करके, उसका एक पूरा प्रिस्क्राइब्ड लीगल वे होगा जिसके जरिए आपस में वो वोटिंग करके एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट मुंतखब कर लेती हैं, जिसको हम सीबीए कहते हैं, और वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द लेबर यूनियंस वो मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएशन वो करते हैं। अब इस बारे में क्लियर रहिएगा कि ये तमाम जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की हो या लेबर यूनियंस का कयाम हो, ये तमाम का तमाम पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में लीगल है, और इसका जो लॉ ऑपरेशनल है दैट इज IRO। IRO स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस के तहत लेबर यूनियंस का कयाम, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स का कयाम, लेबर कोड प्रोसीजर्स, लेबर राइट्स, इन तमाम चीजों को लीगल जो तहफ़्फ़ुज़ है वो दिया जाता है और इन तमाम चीजों को लीगलाइज किया जाता है। सो बाज़-औक़ात ये इसमें कॉम्प्लिकेशन ये भी याद रखिएगा कि बाज़-औक़ात एक ही लेबर यूनियन हो तो वो भी अपने आप को सीबीए बना सकती है, ठीक है। लॉ के अंदर कुछ हमारे पास प्रिविलेजेस ऐसे हैं कि एक ही लेबर यूनियन हो तो वो अपने आप को कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट डिक्लेयर कर सकती है। द रीजन बीइंग कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो लेबर यूनियन के राइट्स एंड प्रिविलेजेस से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। सो इस मकसद के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस इसको आप सर्च कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को एक दफा जरूर गो थ्रू करें सो दैट यू कुड नो कि ये तमाम चीजें ऑपरेशनल किस तरह से होती हैं और इनकी इंप्लीकेशन वो कैसे काउंट की जाती है। सो अब हमारे पास कंडीशंस ऑफ द लेबर मार्केट के साथ साथ एरिया वेज रेट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये तमाम पॉइंट्स आगे जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंपनसेशन सिस्टम को इफेक्ट वो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसा आपका मिनिमम वेज एक्ट, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू अगेन कि आप इस मिनिमम वेज एक्ट को भी जो पाकिस्तान में प्रिवेलेंट है वो जरूर गो थ्रू कीजिएगा सो दैट यू कुड नो कि पाकिस्तान में मिनिमम वेज का लेवल क्या है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को इस मिनिमम वेज पॉलिसी को फॉलो अप वो करना चाहिए। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स में आपकी मिनिमम वेज एक्ट आ जाएगा, आपके चाइल्ड लेबर के इश्यूज आ जाएंगे, आपके जो माइन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ आ जाएगा। सो बहुत सारे ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके तहत ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कंपनसेशन सिस्टम्स के अंदर तब्दीली वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज बहुत से प्रोसीजर्स, लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट लॉन्च हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का कॉन्टेक्स्ट भी वो मौजूद है कि अगर आपने ड्यूरिंग द कंपनसेशन पॉलिसी डेवलपमेंट आपने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ख्याल ना रखा तो उस सूरत में आपके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयां वो हो सकती हैं। डिस्क्रिमिनेशन आपके खिलाफ डिक्लेयर हो जाएगी और डिस्क्रिमिनेशन का अगर आपके खिलाफ केस फाइल हो जाता है तो नो डाउट यू आर आंसरेबल इन द कोर्ट। सो देयरफॉर ये तमाम फैक्टर्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट्स की पॉलिसीज एंड उनके जो प्रेशर्स हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपका एरिया वेज रेट, कंडीशन ऑफ लेबर मार्केट, ये तमाम कंपनसेशन सिस्टम को इफेक्ट वो कर रहे हैं। अब हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट यकीनन हो सकता है कि सम टाइम सपोजिटली एक बड़ी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है और वो ये समझती है कि मिनिमम वेज जो है वो बहुत कम है जिससे कि वर्कर्स का गुजारा मुश्किल से होगा, तो मे बी दे आर गिविंग मोर देन दैट। तो दैट इज द रीजन we have used the expression कि वो minimum wage है, that is not defining any maximum limit. Okay? Minimum का मतलब ये होगा कि उससे कम पर आप लोगों को काम नहीं करवाओगे, उससे ज्यादा आप जितना मर्जी देना चाहते हो तो वो आपकी अपनी स्वाबदीद, अपनी गुडविल, अपना जेस्चर वो होगा, राइट? लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत शदीद अंदाज में लोगों की एक्सप्लॉयटेशन भी कर रही होती हैं। ओके तो ये एक मिला जुला रुझान यकीनन हमें मिलेगा कि जिसमें बाज जगहों पर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर पेइंग मोर एंड बाज जगहों पर ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन कि मिनिमम वेज एक्ट क्या है और उसके मुताबिक हमें कितना पे वो करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में देखे कि जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनसेशन सिस्टम उसका पूरा पैकेज प्लान है वो डेवलप होता है और उसमें क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखना आपके लिए जरूरी होगा। अब हम एक स्टेप आगे और चलते हैं जिसमें कि की स्टेप्स इन क्रिएटिंग जॉब बेस्ड कंपनसेशन प्लान्स हमारा कॉन्टेक्स्ट है। इस फ्लोशीट डायग्राम को हमने
फर्स्ट चैप्टर में भी एक दफा गो थ्रू किया था, लेकिन आज चूंकि इसकी हमने डिटेल डिस्कशन करनी है, दैट इज द रीजन कि मैं दोबारा से आपसे शेयर कर रहा हूं। याद रखें कि सबसे पहला स्टेप जहां से आपका प्रोजेक्ट भी शुरू होना है और आपका सारा वर्किंग एचआर का भी शुरू होता है, दैट इज द जॉब एनालिसिस। नाउ रिमेंबर अबाउट योर प्रोजेक्ट कि आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 डेजिग्नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन की वो पिक करनी है और उन 5 डेजिग्नेशंस का आपने जॉब एनालिसिस करना है। अब जॉब एनालिसिस की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब ऑब्वियसली आपने पिछले कोर्सेज में वो गो थ्रू की होंगी कि जॉब एनालिसिस करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चनर टेक्निक है, आपके पास ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, आपके पास इंटरव्यू टेक्निक है, आप पार्टिसिपेंट डायरी एंड लॉग से डाटा कलेक्शन कर सकते हो। सो डिफरेंट वेज हैं जिनसे कि आप डाटा कलेक्ट करके जॉब एनालिसिस डॉक्यूमेंट जो है वो अपना पूरा प्रिपेयर वो करेंगे। In our next sessions, I'll be showing you some templates of job analysis, जिसमें कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट पर्टिकुलरली वो देखोगे और आपको उन्हीं टेम्पलेट को फॉलो करना होगा जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वर्किंग वो कर रहे होगे। उन टेम्पलेट्स में आई हैव ट्राइड टू अकोमोडेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हमें एक जॉब के हवाले से चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम की रिजल्ट एरियाज, की परफॉर्मेंस एरियाज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इनका भी जिक्र करेंगे, हम नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज का भी जिक्र करेंगे। सो एक पूरा फॉर्मेट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू एंड आई विल बी शोइंग यू कि जिस तरीके से आपको अपना जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करनी है और कंपाइल करनी है। सो बट एनीवे, आपका जो पहला स्टेप है जब आप कंपनसेशन प्लान्स की बात कर रहे हो तो उसका स्टार्टिंग स्टेप इज जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस में ऑब्वियसली देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज टॉकिंग अबाउट TDRs along with KRA, KPA and KPIs, and job specification is talking about KSAOs. अब जब ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर हो जाएं तो यू कंबाइन देम एंड देन देयर वुड बी द पॉइंट जो कि 4th नंबर पे हमारे पास आ रहा है कि रेट वर्थ ऑफ ऑल जॉब्स यूजिंग अ प्री डिटरमिन्ड सिस्टम। और यहां पर जब हम वर्थ ऑफ जॉब कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो उसमें if you can see on the left side of the slide, there is a box attaching with the worth of job box, and that box is talking about identify compensable factors, जिनको UCF भी कहते हैं, यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स। तो यहां पर इस स्टेज पर पहुंचकर हम हर जॉब का जो जॉब वर्थ होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन वो करेंगे। So once the job evaluation and job worth is calculated, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है which is basically calculating and developing and formulating the job hierarchy। ठीक है, और ये बात बड़ा क्लियरली ज़हन में रखिएगा कि जॉब हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल डायग्राम या ऑर्गेनोग्राम वो डेवलप टेक्निकली स्पीकिंग उस वक्त हो पाती है जब आपने जॉब वर्थ कैलकुलेट की हो। अदरवाइज आप सिर्फ टाइटल पर बेस्ड, आप डेजिग्नेशन का जो एक आपको एक तासुर है उस पर बेस्ड लोगों को एक ऑर्गेनोग्राम में प्लेस कर दोगे, और गलती वहां पर हो जाएगी कि बाज़ औक़ात आपने जॉब्स को जब प्रॉपर्ली डिफाइन ना किया होगा तो लोअर हायरार्की में बंदे की जॉब वुड बी हैविंग मोर वर्थ एज कंपेयर टू द अपर हायरार्की जॉब। ठीक है, तो ये टिपिकल एरर्स वो होने शुरू हो जाते हैं। इसके बैकएंड पर रीजन क्या है कि आपने जॉब की वर्थ को कैलकुलेट ही नहीं किया था कि किस जॉब की एक्चुअली वर्थ है क्या। और जब आपके पास प्रॉपर वर्थ कैलकुलेट नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप कभी भी सही टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन जॉब से रिलेटेड डेवलप वो नहीं कर पाओगे। सो डियर, जब आपने जॉब हायरार्की बना ली बेस्ड अपॉन द जॉब वर्थ, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा विच इज क्लासिफाई जॉब्स बाय ग्रेड लेवल्स। अब हम उन तमाम जॉब्स को कंपाइल करेंगे, कंबाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स एंड स्केल्स। ठीक है, जब आपने ग्रेड्स एंड स्केल्स बना लिए तो उसी के साथ जो स्टेप हमारा चल रहा होगा दैट वुड बी मार्केट सर्वेस फॉर एक्सटर्नल इक्विटी। हम इस बात को भी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि जो ग्रेड्स एंड स्केल्स हमने डेवलप किए हैं क्या मार्केट के अंदर उसी किस्म के ग्रेड्स एंड स्केल्स हैं, और जो मार्केट के अंदर उस तरह की जॉब्स हैं उनकी वर्थ क्या है और उनकी एवरेज कंपनसेशन वो कितनी है। ये हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट होता है सैलरी सर्वे का या वेज सर्वे का। अब जब आपके पास मार्केट सर्वेस आ गए, आपने एक्सटर्नल इक्विटी को इंश्योर कर लिया, तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी एस्टैब्लिश फाइनल पे पॉलिसी। और फाइनल पे पॉलिसी डेवलप करने के दौरान आपको मार्केट वैल्यू यूजिंग बेंचमार्क और की जॉब्स इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसमें हम कुछ जॉब्स को सिलेक्ट करेंगे और जॉब्स को सिलेक्ट करने के बाद हम इस बात का
इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जेडी अवेलेबल है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग काम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, और उन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पर बेस्ड आप उनको कंपनसेट क्या कर रहे हो, और इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो कंपनसेट क्या कर रहे हैं. So for that matter, हम चेक मार्केट वैल्यू यूजिंग बेंचमार्क और की जॉब्स का स्टेप जो है यहां पर ऐड करेंगे. अब 7th पॉइंट पर पहुंचकर हमारे पास फाइनल पे पॉलिसीज वो डेवलप हो गई, और फाइनल पे पॉलिसीज डेवलप करने के बाद हम इंडिविजुअल पे असाइनमेंट्स उस तरफ चले जाते हैं जहां पर हर एक इंडिविजुअल को अब उसकी जॉब परफॉर्मेंस के मुताबिक कंपनसेशन वो दी जाएगी. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कंपनसेशन आप ब्लाइंडली कभी नहीं देते हो, आपको उनकी जॉब की परफॉर्मेंस को भी कैलकुलेट वो करना है. अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम जॉब परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा जो निजाम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जो एस्पेक्ट्स हैं, उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर अवर मिड टर्म. सो दैट इज द रीजन कि यहां पर अब आपका वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी पॉइंट की, जिसमें परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन वो करनी आपके लिए जरूरी होगी. अब जब आप परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन कर रहे हो और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स को कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स वो एलोकेट कर रहे हो, तो यू हैव टू बियर इन माइंड कि विद इन पे रेंज पोजीशनिंग क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल इक्विटी मस्ट बी मेंटेन्ड. ठीक है, अगर इंडिविजुअल इक्विटी मेंटेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन वो हो रही होगी, और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपके खिलाफ वो कार्रवाई भी हो सकती है, लोग डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, टर्नओवर और एब्सेंटिज्म भी आ सकता है. ये बात भी याद रखिएगा कि जब आप लोगों की जॉब्स को वैल्यूएट कर रहे हो, आपने उनको कंपनसेट करना है, तो देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर पे पोजीशनिंग विद इन द रेंज ऑफ ईच जॉब. अब पे पोजीशनिंग के लिए जो क्राइटेरिया जनरली डिस्कस किए जाते हैं, दैट मे इंक्लूड एक्सपीरियंस, सीनियरिटी, परफॉर्मेंस एंड लाइकवाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप यूज वो कर सकते हो. यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए.